Good morning, friends. Myself Kedar Badeka, and today I'm taking a lecture of material science and metallurgy. So, in the previous series of the lecture, we tried to discuss about the crystal structures and the crystal imperfections. In the previous series of the lecture, we tried to understand about the crystal directions and the crystal spline, how the uh, crystallographic arrangements are happens in the different cubic structures like the simple cubic structure, BC's basic cubic structures, then the phase cubic structures, and the hexagonal peg cubic structures. So in the previous series of the lecture we tried to understand about the basics things about the uh, basic things about the how the crystallographic arrangements and the crystal directions are done in the crystallographic system. So in today's series of the lecture, we try to discuss about the basics of the Miller indices, right? The Miller indices, which is the in the previous series of the lecture, what we try to discuss about that thing, we basically understands about the lattice, right? The lattice, which is the uh, combinations of the crystals and the bases, right? So before we have to understand the Miller indices, right? We have to understand about the basics of the Brevery lattice, right? Based on the foundations of the Brevery lattice, we can understand based on the Miller indices, right? So here you can see that on the top of the your screen, you can see that the different indices, cubic indices figures are you can shown in the figures, right? So in the first series of the first sections of the figure, which is uh, you can see that some of the basic cubic structures which is designated with the three coordinations system, which is the x, y, and z, right? Which is indicated as a 100 coordinate system, right? So with the same time you can see that some of the basic crystallographic arrangement of the BCC, FCC, and basic cubic structures, and meanwhile in the same you can see that the third figure from the first row, which is the showings about the plane distributions of the crystals, right? So here you can see that, so the xyz coordination systems are shown here in the figure, and in the same while you can see that the how the planes of that crystal cubic structures are arranged in the one cubic sections of the unit cells. So we try to more understand about the Miller indices. So before we can reach on the crystal systems, we have to understand the basic concept about the unit cells, right? The unit cell, there are the several crystal systems, 7 types of the several crystal systems, and the 14 crystal lattices, right? वो जो चीज़ थी वो हमने काफ़ी बार जो है वो रिपीटेशन में स्टडी की है। कल भी हमने वो चीज़ जो है वो 7 क्यूबिक लैटिसेस जो है वो डिस्कस करनी थी, वो भी हमने एक बार उसका रिविजन किया था। तो यूनिट सेल बेसिकली क्या चीज़ होती है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट रिपीटेटिव वॉल्यूम विच इज़ कंटेन द कंप्लीट लैटिस पैटर्न ऑफ द क्रिस्टल। एक पूरा जो क्रिस्टल है उसमें से एक छोटा सा पोर्शन जो सेम पैटर्न जो है वो पूरे क्रिस्टल्स में ऑब्जर्व करके दिखाता है, राइट? उसी का एक भाग, राइट? एक पूरा जैसे आपके पास क्यूब है, क्यूब में से आप एक छोटा सा क्यूब निकाल लोगे विच इज़ डेजिग्नेटेड एज ए यूनिट सेल, राइट? अब यहाँ पे जो है वो आपको हमने एक बेसिक उसमें से एक कोऑर्डिनेशन पॉइंट लिया है। उस बेसिक कोऑर्डिनेशन पॉइंट को किस कॉरस्पॉन्डिंग से लिया है? 3 कोऑर्डिनेशन सिस्टम के कॉरस्पॉन्डिंग्स लिया है। उस पॉइंट से जो है वो हमने स्पेस के लेंथ, विड्थ और हाइट जो है वो डेजिग्नेट किए हैं विद दी
ए बी सी, राइट। यहाँ पे जो है वो बेसिक आपको प्रिमिटिव्स दिख रही है, उसमें सिंगल लेटिस पॉइंट आपको दिख रहा है, देन इंटरनल आई के साथ जो है विच इज़ द बॉडी सेंटर्ड, देन all the faces have the planes which is the face cubic centers and the end cubic centers। जो end होते हैं ना उसके end में आपको वो primitives के अंदर यूनिट सेल के अंदर जो है वो वहाँ पे आपको क्रिस्टल्स का अरेंजमेंट आपको यहाँ पे दिखाया गया है। सो यहाँ पे जो है वो लेटेस्ट पैरामीटर्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस है इन द क्यूबिक, देन द ऑर्थोहम्बिक हेक्सागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। सो यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो बेसिक क्यूबिक्स है वो बेसिक क्यूबिक्स के अंदर जो है विच इज़ द लेंथ विच इज़ एज इक्वल टू द विड्थ एज इक्वल टू दी इट्स हाइट विच इज़ कॉल्ड एज ए सिंपल cubic system। now in the orthombic, right, उसके अंदर जो है वो बेसिक आप देख लीजिए, जो इसका जो हाइट है विच इज़ एज इक्वल टू द विड्थ, राइट, सॉरी उसका जो लेंथ है विच इज़ एज इक्वल टू द विड्थ बट द हाइट विच इज़ डिफरेंट। सो ए इज इक्वल टू बी विच इज़ नॉट इक्वल टू द सी। नाउ द हेक्सागोनल, सो हेक्सागोनल के अंदर आप देख लीजिए पहले तो जो केसेस थे उसके अंदर जो है वो जो फेसेस के बीच जो एंगल बनता है विच इज़ द 90 डिग्री एंगल, राइट। यहाँ पे हेक्सागोनल के अंदर आप देख लीजिए जो फेसेस है उसके बीच जो एंगल बनेगा विच इज़ द 120 डिग्री एंगल। सो द बेसिक डेफिनेशंस जो है वो हमें पॉइंट्स का पता है, वेक्टर का पता है, वेक्टर विच इज़ इंडिकेटेड एज ए जॉइनिंग ऑफ द 2 पॉइंट्स इन द crystallic system। Now the another new definition which is as a Miller index which is defined as a particular plane। Miller index जो है वो बेसिकली उसको एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर आसान भाषा में हमें मिलर इंडेक्स जो है हमें समझना है तो फिर उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, विच इज़ डेजिग्नेटेड एज ए सिंपल पर्टिकुलर प्लेन, राइट। एक जो पर्टिकुलर सिंपल प्लेन होता है विच इज़ इंडिकेटेड एज ए lattice site। So the relations to the diffractions, the 3 index for cubic and 4 index notation for the HCP, right, hexagonal cubic primitives। So points, directions in planes in the unit cell। So we try to more understand about the mirror index, is short and the notations to describe a certain crystallographic directions and the planes in a material which is denoted by square bracket, angular bracket and the round brackets। A negative number is represented by a bar over a number, the numbers। So there is a 3 coordination directions which is the x, y and z। So you can see that there is a x which is indicated as a 1 0 0, then in y there is a 0 1 0 and z which is the 0 0 1 which is indicated as a first which is indicated as a its width, then its length and then its height, right। So in point coordination system you can see that in a simple cubic coordination system, cubic structures, you can see that we are taking the 3 coordination direction which is the x, y, z from the point of the neutral point which is the C, right। At the neutral point C, that coordination distance which is the 0 0 0, as we can move forwards to the x directions, so we can the coordinates of the selected points in the unit cell, the number which is referred to the distance from the origin in the terms of the lattice parameters। So हम लोग x की तरफ जब जा रहे हैं तब x जो है वो सबसे दूर होगा, दैट इज दी, हम लोग x की डायरेक्शंस में गए ना, तो अब x हो जाएगा 1 अपना, बाकी 2 पॉइंट्स जो रहेंगे विच इज़ दी 0 0, राइट। हम लोग उस डायरेक्शंस के अंदर नहीं जा रहे हैं, राइट। अब जब y की बात करते हैं तब y की बात करेंगे तब क्या होगा, उस पॉइंट के अंदर y की डायरेक्शन में जाएंगे तब उसका कोऑर्डिनेशंस बनेगा आपका 1 1 0। अब ये किस लिए, अब ये चीज़ हो भी सकती थी कि 0 1 0, ये चीज़ हो सकता था आपका y 0 है, राइट।
अब आप उसके हाफ में जाएंगे तो 1/2 1, y जो है वो 1 हो जाएगा, x की जो डायरेक्शंस है विच इज़ 1/2 एंड द z विच इज़ 0। अब आप उसी डायरेक्शंस को एक जो है वो एंगुलर सेगमेंट के अंदर जाएंगे, दैट इज़ द 1 1 एंड 0। अब z के बारे में जाएंगे, तब z के बारे में जाएंगे तो उस पॉइंट के ऊपर आप देख लीजिए हम लोग किस डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं। x में भी मूव किया, y में भी मूव किया, राइट, x के अंदर भी मूव किया है हमने, y में भी मूव किया है हमने, और z के अंदर भी मूव किया है। दैट इज़ दी उस पॉइंट के अंदर, उस कोऑर्डिनेशन पॉइंट के अंदर आप देख लीजिए 1 1 1, और z वाला जो पोर्शन है उसके अंदर आप देखेंगे तो z वाले पॉइंट के ऊपर जो आपका पॉइंट बनेगा जिट इज़ 0 0 1। ये जो है वो डिफरेंट कोऑर्डिनेशन सिस्टम जो है वो आपको यहाँ पे हमने समझाने की कोशिश की है, विच इज़ द पॉइंट कोऑर्डिनेट्स, राइट। सो इन क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शंस, अब उसके बाद जो चीज़ आती है वो है डायरेक्शंस। अब डायरेक्शंस कैसे, आप देख लीजिए कि आपके पास जो एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर्स है उसको हमने उसी डायरेक्शंस के आगे जो है वो एक एजम्पशन के साथ उसको एक्सपांड किया है, राइट। अब उसका कोऑर्डिनेशन सिस्टम एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेशंस के अंदर कैसे बनेगा, राइट। तो उसी पॉइंट को हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो वो पॉइंट जो है वो विच इज़ दी 1 1 1 वो तो वैसे ही रहेगा क्योंकि उसी डायरेक्शन को हमने एक्सपांड किया है, राइट। उसका एल्गोरिदम जो है वो, राइट, अ वेक्टर रिपोजिशनेट्स इफ नेसेसरी टू द पास थ्रू द ओरिजिन, उसी ओरिजिन से हमने उसको एक्सपांड करने की कोशिश की है। रेड ऑफ द प्रोजेक्शंस इन द टर्म्स ऑफ द यूनिट सेल डिमेंशंस विच इज a b and c, adjust to the smallest integer value, enclose in a square brackets, so no common. So फॉर एग्जाम्पल दैट इज़ अ 1 0 and 1/2, राइट। वो जो हमने वो एग्जाम्पल हमने लिया है, राइट। अब जैसे हम लोग उसी डायरेक्शंस के अंदर नेगेटिव डायरेक्शंस के अंदर जाएंगे तो नेगेटिव डायरेक्शंस में जब भी जाएंगे जिस भी साइड जाएंगे तब उस साइड के अंदर माइनस होता चला जाएगा। तो यहाँ पे आपका x जो है वो आपको नीचे माइनस दिख रहा है, -1 1 1, राइट, वेयर द ओवर बार विच इज रिप्रेजेंट एज ए नेगेटिव इंडेक्स। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द डिफरेंट कोऑर्डिनेशन सिस्टम्स, राइट। देन द अनदर थिंग्स, यहाँ तक जो है वो हमने बेसिकली कल थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश की थी इस चीज़ के बारे में। अब उसके आगे जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है विच इज़ द क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स, राइट। प्लेन जो हमने डायरेक्शन स्टडी किया था, क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, प्लेन जो है वो अभी तक डिस्कस नहीं किया है। अब प्लेन को डिस्कस करने से पहले जो है हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी मिलर इंडेक्स के अंदर। इफ़ द प्लेन विच इज पासिस थ्रू द ओरिजिन, राइट, अपना सी जो था वो ओरिजिन था, आइदर कंस्ट्रक्ट द अनदर प्लेन, वो एक अनदर प्लेन कंस्ट्रक्ट कर सकता है और क्रिएट अ न्यू ओरिजिन, या तो फिर आपको न्यू ओरिजिन जो है वो कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। देन each axis which is decide whether the plane is intersects or the parallel the axis. तो यहाँ पे जो है उसका जो एल्गोरिथम रहेगा वो जो है वो डायरेक्शन से काफ़ी सिमिलर मिलता होगा, राइट। सो उसको समझने के लिए आपको क्या चीज़ करनी पड़ेगी, उसको समझने के लिए आपको
first you have to rid of the intercept of the plane with the axis in the terms of A, B and C. Take the reciprocals of the intersect, reduce a smallest integer value, enclose in the parentheses and no commas, right? यहाँ पे आपको अब मैं आपको जो प्लेन है वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए, आपके पास एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर्स है, राइट? उसको हमने z डायरेक्शंस के अलोंग जो है वो उसको एक्सपांड किया है, राइट? जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स रह गए हमारे, विच इज़ दी 0 0 1, z सिर्फ z के अंदर हमने इंक्रीमेंटल मोड पे उसको एक्सपांड किया है। सो द क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स आर specified by the 3 Miller indices, right? All the parallel planes have the same Miller indices. So there is a 0 0 1 plane references to the origin at the 1.0. So in the 0 there is x, y and z directions. So you can see that the other equivalent 0 0 plane is that which is the, आपको जो बीच वाला जो ग्रीन पोर्शन दिख रहा है ना, वो उसका भी जो है वो प्रिमिटिव्स क्या हो गए, 0 0 1 ही हो गए, क्योंकि वो आप नीचे वाले कॉमन बेस पॉइंट से उसको देख लीजिए। कॉमन बेस पॉइंट से 0 तक जो है वहाँ तक उस प्लेन का डिस्टेंस कितना रहेगा, राइट? उस वहाँ से वो z की डायरेक्शंस में ही मूव हुआ है ना, तो 0 0 1 उस प्लेन का भी होएगा। अब उसके ऊपर वाला ग्रीन प्लेन यानी टॉप ग्रीन प्लेन आप उसको सोचिए, तो वो भी 0 0 1 होगा। कहाँ से? बीच वाले प्लेन से, राइट? तो इसी तरीके से जो है वो एक और जो है हमने एक प्लेन्स लिए हैं, एक हॉरिजॉन्टल जो है वो हॉरिजॉन्टल जो है वो रेक्टेंगुलर जो है वो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स आपको सिस्टम दिख रहा है, उसको हमने एक्सपांड करने की कोशिश की है। उसको अगर एक्सपांड करने की कोशिश करेंगे तो उसका जो बेसिक प्लेन रहेगा, आप बेसिक प्लेन उसका ओरिजिन उसको देखिए, तो ओरिजिन विच इज ओ, which is expanded in the directions of the y, right? Which is expanded in the directions of the y, where the x and z, which is the 1 1 0, वो z के डायरेक्शंस x की डायरेक्शंस में भी एक्सपांड हुआ है और z के डायरेक्शंस में ज़्यादा एक्सपांड हुआ है। सो द अदर इक्विवेलेंसेस ऑफ द प्लेन नंबर सेकेंड एंड प्लेन नंबर थ्री in the same way is just like that as A. The plane is references to the origin at the point of the O. The other equivalences of the 1 1 0 is the plane number second and plane number third. So the plane is reference to the origin at the same point of the third figure which is the O. O को आप देख लीजिए तो वो जो है वो एक सिंपल तरीके से ट्राइंगुलर प्लेन है। वो ट्राइंगुलर जैसे एक्सपांड होता जाएगा तो 1 1 1 वो तीनों डायरेक्शंस के अंदर जो है उसका एक्सपांशन आपको दिख रहा है उस प्लेन का, राइट? नाउ व्हाट इज द मिलर इंडिसेस? द मिलर इंडिसेस आर ए symbolic vector representations for the orientations of an atomic plane in a crystal lattice and are defined as a reciprocal of the fractional intercepts which the plane is make with a crystallographic axis, जो हमने पहले उसको देखा था। To find the Miller indices of the planes, to take the following step. First, we have to determine the intercepts of the plane along each of three crystallographic directions. Take a reciprocals of the intercepts. Take the reciprocals of the intercept. If a fractions results, multiply each by the denominators of the smallest fractions. तो यहाँ पे जो है वो क्रिस्टलोग्राफिक आपको प्लेन के इसके जो एग्जांपल्स हैं वो
किस तरीके से वो इंटरसेप्ट होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं और इसके अंदर रिडक्शंस ऑब्जर्व होता है, वो आपको क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स के अंदर एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। देन इसके अंदर एक हमने प्लेन को डेवलप किया है, वो प्लेन ए बी एंड सी, राइट। वो प्लेन के अंदर जो है वो इंटरसेप्ट जो है वो ए कहाँ पे करेगा, 1 पूरा इंटरसेप्ट होगा उसका, बी के साथ पूरा इंटरसेप्ट होगा, और जेड की डायरेक्शंस के जेड डायरेक्शंस के अंदर बात करें तो दैट इज़ द इनफाइनाइट, वहाँ पे जो हाइट है वो दैट इज़ द इनफाइनाइट इंटरसेप्ट हाइट रहेगी आपका। नाउ कितना रेसिप्रोकल होगा, which is the 1 by 1, which is the 1 by 1 and which is the 1 by infinite. Now the reduction which is the 1 1 0 and the Miller indices which is 1 1 0. Then the another example आप देख लीजिए, एक क्यूबिक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर एक आपको प्लेन दिख रहा है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, ए बी एंड सी जो है वो प्लेन के आपको लेटिसेस दिख रहा है। यहाँ पे आप इंटरसेप्ट देखिए तो x जो ओरिजिन पॉइंट O से है तो उससे आप देख लीजिए a जो है वो x की डायरेक्शंस में 1/2, फिर y की डायरेक्शंस में जो है वो इनफाइनाइट जा रहा है, और z की डायरेक्शंस में c देख लीजिए तो c आपको दिखेगा वहाँ पे भी इनफाइनाइट पॉइंट के ऊपर। रेसिप्रोकल जो है वो 1 + 1 × 1/2, 1 × infinite and 1 × infinite. Now the reduction which is the 2 0 0. So द मिलर इंडेक्स विच इज 2 0 0। तो इसी तरीके से ये एग्जाम्पल थे। ये एग्जाम्पल के अंदर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको भी ये चीज़ जो है वो धीरे धीरे समझ में आएगी। एक जो पॉइंट कोऑर्डिनेशन सिस्टम के साथ एक बीच में ट्रायंगल सिस्टम जो डेवलप होती है, ये इसका एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से किस तरीके से जो मिलर इंडेक्स बेसिकली जो चीज़ है वो बेसिकली किसके लिए है, राइट। तो वो बेसिकली इसको डेवलप किया गया है कि एक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर जो प्लेन्स एक डेवलप्ड है, राइट, वो प्लेन को जिस डायरेक्शंस के अंदर वो एक्सपांड हो रहा है तो उस डायरेक्शंस के अंदर उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स जो है वो क्या रहेंगे, उस कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स को समझने के लिए जो है ये क्रिस्टलोग्राफिक मिलर इंडेक्स सिस्टम जो है वो डेवलप्ड किया गया था। जैसे एक ब्रेवरी लेटर सिस्टम था, इसी तरीके से ब्रेवरी लैटिस सिस्टम के बाद जो है वो ये मिलर इंडेक्स सिस्टम जो है वो इस तरीके से इसको डेवलप्ड किया गया है। सो यहाँ पे और एग्जांपल है, इस एग्जांपल के अंदर आप देख लीजिए तो इस एग्जांपल के अंदर भी आपको सिमिलर थिंग्स जो है वो नज़र आएगी। द डिटरमाइन द मिलर इंडेक्स फॉर द प्लेन विच इज़ शोन इन द स्केच, यू कैन सी दैट एक आपको एक सिस्टम क्रिस्टलोग्राफिक सिस्टम दिखाया गया है, उसके अंदर जो है वो एक प्लेन डेवलप्ड हुआ है, उस प्लेन के अंदर उसके जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है उसको एक्स वाई जेड डायरेक्शंस के अंदर जो है उसको एक्सपांड करने की कोशिश की है। और यहाँ पे आप देख लीजिए कि एक्स वाई जेड डायरेक्शन के साथ आपको उसके पॉइंट्स के जो है वो डिमेंशंस भी दिए हैं विद द पॉइंट्स ऑफ द ए बी सी, राइट। तो इंटरसेप्ट कहाँ पे करेगा, विच इज़ द इनफाइनाइट अल्फा ए, देन माइनस बीटा, बी के साथ वो माइनस बीटा ही जा रहा है, और सी के साथ c/2, राइट, वो हाफ तक जा रहा है, राइट, पूरा हाइट तक नहीं जा रहा है। देन दे वहाँ पे आपका इंटरसेप्ट इज विद द लैटिस पैरामीटर्स के साथ विच इज़ द अल्फा -1 and 1/2, देन इन द रेसिप्रोकल विच इज़ द 0 -1 2। सो उसका जो सिस्टम बनेगा विच इज़ द 0 1 2। नाउ द फैमिलीज ऑफ द प्लेन्स दैट आर क्रिस्टलोग्राफिकली इक्विवेलेंट, राइट, जो प्लेन रहता है वो ग्राफिकली जो है वो पैरेलल रहता है, हैव द सेम एटॉमिक पैकिंग, उसका जो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर्स रहता है वो सेम रहता है। ऑल्सो इन क्यूबिक सिस्टम ओनली प्लेन्स विच इज हैविंग द सेम इंडिसेस, जो क्यूब रहता है ना उसके अंदर जो इंडिसेस रहते हैं वो सेम रहते हैं, रिगार्डलेस ऑफ ऑर्डर and sign are equivalent. For example, that is the 1 1 1 1 1 1। ये आप एग्जाम्पल इसको देख सकते हैं, ये सिंपल क्यूबिक सिस्टम्स के लिए एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो फैमिलीज ऑफ द प्लेन्स के अंदर आप देख लीजिए ये आपको सिस्टम दिखेगा, दैट इज द 1 1 0, राइट। ये चीज़ अब आपको आप ऑब्जर्व करेंगे उतना आपको उसको आप कोऑर्डिनेशंस को मैच करने की कोशिश करेंगे तो उतना ज़्यादा आपको समझ में आता जाएगा, राइट। ये चीज़ मैंने आपको आज के लेक्चर्स के अंदर जो है
वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। अब आप इसी फैमिलीज ऑफ प्लेन को ऑब्जर्व करेंगे तो वो चीज़ आपको डेप्थ में ज़्यादा समझ में आएगी। उसके साथ साथ जो है वो आप कोऑर्डिनेशन पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं वो चीज़ भी आप समझ सकते हो, राइट। अब मैं ये चीज़ आपको एक डिस्कस करना चाहता था कि एक एफसीसी आपके पास स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो है जो फेस के सेंटर में जो है वो एक क्रिस्टलोग्राफिक सिस्टम का एक पॉइंट्स जो है वो रहता है। तो आप बेसिक पॉइंट्स लीजिए, तो बेसिक पॉइंट के साथ इसका जो है वो अरेंजमेंट जो है वो कैसे रहेगा। तो एक्स वाई और जेड डायरेक्शंस के अंदर आप देख लीजिए, एक्स विच इज़ 1, y which is 1 और z which is the 0 in the plane. So a b and c उसी प्लेन को आप उसी इंडिस को आप नीचे खींचिए which is the d e f, राइट। वो जो है वो एक पूरा प्लेन बन रहा है। इसी तरीके उसके बाजू में प्लेन लेफ्ट साइड प्लेन होगा, राइट साइड प्लेन होगा, लेफ्ट साइड प्लेन होगा, राइट साइड प्लेन होगा। उसी तरीके से वो पूरा जो है वो क्यूबिक सिस्टम जो है वो पूरा डेवलप्ड हुआ है। अब बीसीसी में कैसे होता है, तो बीसीसी में भी सेम अरेंजमेंट जो है वो आपका सेम रहेगा विच इज़ दी 1 1 0, राइट। ए बी सी आपका क्योंकि इसके अंदर जो है वो बीसीसी विच इज़ डेजिग्नेटेड एज ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, राइट। उसके बॉडी के जो है वो सेंटर में उसका एक एटम्स जो है वो रहता है। तो यहाँ पे आपका ए बी सी देन डी सी ई उस तरीके से जो है वो पूरा क्रिस्टोग्राफिक अरेंजमेंट जो एक ट्राइंगुलर जो है प्लेन, एक फॉरवर्ड ट्राइंगल और एक बैकवर्ड ट्राइंगल, इस तरीके से जो है वो पूरा अरेंजमेंट इसका वहाँ पे बनता है। इसी तरीके से आपको सिस्टम वहाँ पे वो देखेगी। ये जो है वो बेसिक क्यूबिक सिस्टम का एग्जांपल है। एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेशन के सिस्टम के साथ जो है वो वाई और जेड के अंदर इनफाइनाइट है। जबकि रेसिप्रोकल की अगर बात करें तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 और 1/2 हो जाएगा। देन वाई और जेड डायरेक्शंस के अंदर वो इन्फाइनेटली रेसिप्रोकल हो सकता है और स्मॉलेस्ट रेशियो जो रहेगा 1 0 0 और उसका जो मिलर इंडिस बनता है विच इज़ दी 1 0 0। नाउ दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ दैट मिलर इंडिसेस. So here you can observe and you try to understand how the crystallographic arrangements are to be happens, right? So ये चीज़ आप ऑब्जर्व करिए और उसको इंटरसेप्ट और रेसिप्रोकेट के साथ जो है वो उसको समझने की कोशिश करिए. नाउ दिस इज द एग्जांपल ऑफ द थर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट्स. नाउ दिस इज द एग्जांपल ऑफ द फोर्थ क्यूबिक अरेंजमेंट्स. ये चीज़ हमने पहले भी एक बार अभी देखने की कोशिश की थी. नाउ दिस इज द लास्ट इंटरसेप्ट एग्जांपल ऑफ द मिलर लैटिसेस, राइट. सो आज के लेक्चर के अंदर जो है हमने ये चीज़ जो है वो डिस्कस करने की कोशिश की थी. आप इस लेक्चर को एकदम आराम से देखिएगा, इसको समझने की कोशिश करिएगा. अगर इस लेक्चर के अंदर आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो फिर आप मुझे डेफिनेटली यूट्यूब के कमेंट सेक्शंस के अंदर पूछ सकते हैं. हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि काफ़ी स्टूडेंट जो है वो इसको बहुत इजीली ले रहा है, राइट. एक बार वीडियो देख के उसका एनरोलमेंट नंबर भी वहाँ पे टाइप नहीं कर रहे हैं. सो प्लीज़ बी सीरियस, वी आर नॉट टेकिंग एनी स्ट्रॉन्ग एक्शंस ऑन यू, राइट. सो जस्ट कोऑपरेट विथ अस. आप ये चीज़ आपको घर पे बैठ के करनी है, आप इतना तो चीज़ कर ही सकते हैं अभी, राइट. प्लीज़ राइट योर एनरोलमेंट नंबर इन द कमेंट सेक्शंस आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, क्योंकि आपका इस सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाली है. इसको आप इतना इजीली मत लीजिए कि ये सेमेस्टर के अंदर एग्ज़ाम नहीं होगा. आपको सीरियसली ये चीज़ को लेक्चर को समझ के आपको घर पे बैठ के आपका स्टडी तो चालू ही रखना है, राइट. So this is all about the this lecture with the Miller indices. Thank you so much for watching this video.